we are the top 5, so it's a good feeling and hopefully looking forward to a good day ahead. मालूम नहीं जजेस क्या टास्क देने वाले हैं, कौन एलिमिनेट होने वाला है. There's nervousness, there's excitement. We were waiting for our judges to come and of course talk to us. लेकिन Hello! You don't look shocked at all. Who do you think I am? आपको मेरी आवाज से कुछ समझ में आ रहा है? Sound very familiar. I'm RJ Archana Panya. I host a weekly show from Monday to Saturday with Salil. It's called Kasakai Mumbai. And now the reason I'm here is my friends Alim, Natasha, and Rod have been telling me you guys are so good. I need to know what's been the most memorable moment for you on Tresemme Karbal? मेमोरेबल मोमेंट हम लोग मेरे लिए स्पेशली वो था जब हम लोग इस सैलून के अंदर में एंटर किए तो एक काफ़ी बड़ा सैलून बहुत वेल सेटअप. ओह, आपको लगा नवाबी सैलून में आप आए? Yes, बहुत let's बड़ा. say. Spacious. Gaurav, I need to ask you. Have you ever said, "मम्मी, मैं क्यों यहाँ आया हूँ?" ये मोमेंट हुआ है आपके साथ? नहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ है. पर यस, हमारे लास्ट टास्क में दादी की याद जरूर आई. You're such fun. Okay, but one sec. I need to test you guys. आप कितने अच्छे हो? Why don't you all get up? मैं एक सीट में बैठ जाती हूँ. You got the most muscles, Gaurav. Come here. आपको मुझे जोर से घुमाना है. मैं अपनी आंखें बंद रखूंगी. And I'll keep the mic pointed out. And जिसके भी तरफ mic pointed होगा, वो मेरे hair styling करेंगे. Okay? Okay. All right. All the best. 1, 2, 1, 2, 1, 2. And stop. Who is this? Lovely. Oh, I have chosen you. मुझे बताइए मेरे बाल आपको कैसे लगे? of course are lovely. The waves that are there, that's lovely. Okay, maybe it just needs to be styled a little. Are we done? Woo! I like it. I really like it. Thank you. Now I think I shall tell you why I'm really here. लेकिन उससे पहले हम बुलाते हैं हमारे जजेस को. Okay, let's go for it, my dear friends. Alim, anything special that you want to point out about any of the contestants? Could be? मुझे एल्टन काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी पैशनेट है और बहुत मेहनत करता है. खाली थोड़ा सा एंड में जाके कहीं ना कहीं वो रेस में पीछे हो जाता है, तो कहीं ना कहीं आगे आ जाएगा. ही इज अ स्मार्ट डूड. गौरव सारे टास्क जीतते आ रहा है और बहुत अपने आप को अंडर एस्टिमेट करता है, लेकिन बहुत टैलेंटेड है. निदा भी बहुत टैलेंटेड है. निदा हमेशा सरप्राइज कर रही है. वो कोई टास्क में नंबर 1 आ रही है, फिर कहीं फर्स्ट रनर पा रही है. रिद्धिमा की प्रिसिशन बहुत परफेक्ट है. और वीरेंद्र थोड़ा विचित्र टैलेंटेड इंसान है, बहुत अलग चीज़ें करता है. हाँ, अगर वो सही चीज़ सब जगह करे तो सही सुपर हो जाएगा. इसलिए ये सारे के सारे टॉप 5 में. और आप में से कोई एक ही विजेता होगा जिसे ट्रेसेमे शो करने का ऑनर मिलेगा. मंजिल थोड़ी दूर है और लॉट ऑफ चैलेंजेस. आपने टेंशन बढ़ा दिया आलिम. लेकिन मैं जिसके लिए आई हूँ अब मैं बता दूँ कंटेस्टेंट्स को व्हाई एम आई हियर. तो आज का आपका मिनी टास्क है म्यूजिक और आपकी हेयर स्टाइलिंग एबिलिटीज को मर्ज करते हुए अलग अलग जॉनर्स के आपको हेयर स्टाइल करने का मौका दिया. लेकिन आपको वही हेयर स्टाइल्स उस म्यूजिकल जॉनर के आज के कंटेम्प्रेरी स्टाइल को ध्यान रखते हुए जो आज के लिए रेलेवेंट हो वैसे स्टाइल करने होंगे. Can I finally tell you what your genres of music are? Yes, please. All right then, punk rock. Woohoo! There's grunge. There is hip hop. Disco.
Glam rock. I'm super excited क्योंकि I love music. मैं पियानो बजाता हूँ और मैं गाता भी हूँ. तो music is right up my alley and I can't wait to see what this challenge will bring. Stylist, today our clothes partner is Pepe Jeans Clothes. Pepe Jeans is known for knowing the pulse of fashion. Models are being dressed in Pepe Jeans clothes. I love Pepe. इस टास्क को पूरा करने के लिए आप लोग को मिलेंगे सिर्फ 60 मिनट. ठीक है? स्मार्टली यूज कीजिए. I feel the pressure here right now. All the best, guys. I hope you do justice to the music genre or hairstyle beat. Please come and take your can and go back to your places. All right, guys, so we're curious. Nida, will you open your can and let us know what genre you're doing today? Punk! Get your model, please. Ridhima? Grunge. Lovely. Virendra, we're curious. Hip-hop. Lovely. Fun. Glam rock. Gaurav, let us see. Disco. Dancer. Thank you. It was so much fun. देखिए आपके सैलॉन्स में और इनके भी सैलॉन्स में फ्यूचर में रेडियो सिटी 91.1 ही बजना चाहिए. तब तक के लिए प्लीज कीप ट्यून्ड इन एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. Guys, competition starts now. Let's rock. Let's go. मेरा जो फेवरेट म्यूज़िक है वो गज़ल्स है. हिप हॉप म्यूज़िक का एक लुक क्रिएट करना मेरे लिए नो डाउट थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई मेरे को, मुझे इन सब लुक को क्रिएट करने में. आपके दिमाग में कुछ नो डायरेक्शन है? डाउट कुछ बहुत कुछ आइडियाज़ हैं. थोड़ा सा जैसा कि हिप हॉप में उनको बालों को मूवमेंट ज़्यादा चाहिए होता है, तो थोड़ा सा मूवमेंट रखने वाला उन सब बालों के अंदर में. आप ऐसे सोचोगे ना एक हिप हॉप आर्टिस्ट के बारे में, आप उनका इमेज देखोगे, देन इट विल हेल्प यू अराइव एट द रिजल्ट ईजियर. चलो, वी लीव यू टू इट क्योंकि दिस मैंने ऐसा कभी भी जॉनर टाइप का कुछ ऐसा स्टाइलिंग वगैरह कभी सोचा भी नहीं था, ना कभी किया है. तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था. आई एम डूइंग अ प्रिपरेशन फॉर माय टू अचीव दैट डिस्को लुक. I haven't decided yet, so I guess till the time I'll get finished with this, I'll be having something in my mind. You should really have it planned out in your mind what you're doing. मुझे लगता है मेरा टफेस्ट कंपेटिटर गौरव है. वो कुछ आइडिया नहीं देता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, कुछ शेयर नहीं करता है. तो यू नो, आई डोंट नो, he's got a good game plan. Elton, you've got glam rock. Yes. Excited? Very excited. I think there's a lot I can do. I'm going to create a sort of a structure on the top to give it an edge and blend that with really beautiful hair in the bottom just so that it has a more modern feel. Okay, be careful. It's a fine line between rock and glam rock. We want to see glam rock, yeah? Yes. Okay, good luck. मंक लुक जो है बहुत ही स्पाइकी, शार्प एजेस, कलरफुल बाल है. तो मैंने हेयर कट से स्टार्ट किया. तो वही टाइम पे जजेस आए जब मैं हेयर कट ऑलमोस्ट ख़त्म करी. तो दे केम, तो वो लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मैंने स्टाइलिंग स्टार्ट नहीं किया. सो दे स्टार्टेड गेटिंग अ लिटिल वरीड. मुझे लग नहीं रहा अभी तक आपने स्टार्ट भी किया है कुछ. मैंने सिर्फ बाल को ब्लो ड्राई करके मैंने कट किया. आपका टाइम निकलते जाएगा, आपका कॉम्पिटिशन है. डन, हेयर कट डन. ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे. आपके साथ ऐसे ही होता है, स्टार्ट में कुछ समझ नहीं आता, बाद में आप बहुत अच्छा करते हो. तो देखते हैं. होपफुली. मेरा लुक एक ग्रंज लुक था, तो सबसे पहले मैंने मॉडल के फ्रिंज काटे, फिर मैं बाकी के बालों के साथ स्टाइलिंग करना शुरू किया. मैं टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ जहाँ पे मेरे को थोड़ा सा ड्रेड लॉकी फील भी मिले एंड एट द सेम टाइम क्रिम्प भी कर रही हूँ सो दैट यू नो इट्स अ मिक्स ऑफ टू टेक्सचर्स. दैट्स द सेंसिबल थिंकिंग. दूसरी बात कि आपने फ्रिंज काटा है क्या? आपने काटा है? एक्चुअली इट सूट्स हर. यस इट डज.
Guys, you've got 15 minutes to go, so let's rock. मेरे को खाली आयन चाहिए था, बस उतना ही। मुझे लगता है कि मैं टास्क टाइम पे ख़त्म कर पाऊँगी। आप लोग के पास सिर्फ अभी 5 मिनट बचे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये ऊपर रहे क्योंकि बार बार नीचे गिरते जा रहा है क्योंकि बाल लंबे हैं, बट आई एम स्टिल गिविंग इट माई शॉट। काफ़ी पसीना पसीना हो रहा है, सिर्फ 5 मिनट बाकी है टास्क को ख़त्म होने में और टेंशन ज़्यादा हो रहा है। We've only got 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and stop, guys! Stop! move away. काफ़ी एक्साइटेड है हम यहाँ पर आपका काम देखने के लिए। क्या किया आप लोगों ने? जजेस पे प्रेशर होने वाला है जजमेंट करने के लिए, बिकॉज आज जो मैंने देखा मेरे सब जो साथ के स्टाइलिस्ट हैं सबने ही बहुत अवांट-गार्ड लुक किया है, विच इज़ लाइक आउट ऑफ द बॉक्स। Elton, How did you go? I really like the look. I could totally see lots of modern artists wearing something like this. Was the crimping, did it make a difference? It did add a lot of volume at the root behind. So the crimping just helped my back combing to stay in. Okay, very good. Well, let's see how you go. Good luck. इस वक्त हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे एक्चुअली लग रहा है जैसे ग्रंजी है। शी कुड स्ट्रेट अवे इसी वक्त स्टेज पर जा सकती है और सिंग वन रियली लाइक अ कॉन्क्रीट ब्लॉन्ड टाइप ऑफ सॉन्ग, राइट? Which looks great. this is quite confident. Yeah. They seemed very happy. उनको लगा कि काफ़ी बोल्ड स्टेप था किसी का फ्रिंज इतना छोटा करना। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी थोड़ी सी टेक्निक रॉन्ग हो गई है होल्ड फैक्टर के हिसाब से, क्योंकि अगर आपको ये होल्ड करके रखना था तो आप इसमें दूसरी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते थे। ये अच्छा है जो आपने ऐड किया है, इट्स मेकिंग लुक वेरी कंटेम्प्रेरी, क्योंकि ये हेयर स्टाइल थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, थोड़ी सी कई लोग को हार्श लगती है, तो बिकॉज ऑफ दिस कलर इट्स लुकिंग वेरी सॉफ्ट एंड फेमिनाइन, विच इज़ नाइस। जो आपका आइडिया था वो बहुत खूबसूरत है, आप उसको थोड़ा सा और बेटर कर सकते हो, बस मुझे ऐसा लगता है। देखते हैं, इट्स नॉट बैड। जब कंपटीशन चालू है तो यू नो देयर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन योर माइंड कि आप अच्छे से फोकस करके सोच नहीं कर पाते, तो आई थिंक दैट्स वेयर आई लॉस्ट अ बिट ऑफ कंट्रोल ऑन माय स्पाइक। I wanted to do something a bit different, and I guess I didn't achieve it for sure. The thought process is good, the execution, it falls apart. If you look here and you're looking at the side profile, it's flat. If you're after fullness, it should have been full to there. I'm not saying that it's terrible, it's not terrible, but it's not up the same as what you were earlier. मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लगा। आपने जो ये स्टेंसिल का काम किया है बहुत अच्छा आइडिया था। हमेशा आपको कहता हूँ आपको कहाँ स्टॉप करना है, आप कहीं ना कहीं खो जाते हो। आपके पास आइडियाज़ बहुत है, आप सारे आइडियाज़ एक साथ इस्तेमाल करते हो, और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। ना डायगनल है, ना जिगजैग है, बट नॉट बैड। यू आर टैलेंटेड हेयर ड्रेसर। मुझे लगता है आप जॉनर को पूरी तरीके से नहीं समझे, थोड़ा ज़्यादा म्यूज़िक सुनिए आप। मैंने अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी कुछ अलग क्रिएट करने की कोशिश की थी, काफ़ी कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश की थी, लेकिन जो जजेस की सोच होती है उनके ऊपर में मैं खरा उतना पूरा नहीं उतर पाया उस टाइम में। So the time's come now to reveal the results. Can we please have Nida and Virendra? Nida, you eventually got the concept, but there's very quick ways you could have done what you set out to do. You want to do a mohawk? Do a mohawk. And I'm positive you've seen it in magazines, catwalk, okay? You could have done a lot better. Virendra, your genre was hip-hop. It was hip-hop. Where you let yourself down is you do too much. It was just a whole head that was spray painted. Nicely done, but too much of it. So having said that, किसी न किसी को लास्ट बनना है। It's going to be one of you all. वीरेंद्र, आप में स्कोप है, आप में सोच है, आप में आइडियाज हैं। You've come in fourth. निदा, आप लास्ट आइए हैं। गौरव, रिधिमा और एटन, प्लीज। गौरव,
यू आर क्लियरली अ गुड हेयर स्टाइलिस्ट। आज आप जॉनरा क्लियरली समझे नहीं, लुक प्रिटी था, जस्ट डिडंट मैच द जॉनरा। आप थर्ड आए हैं। मुझे थोड़ा सा डाउन फील हो रहा था, 3 बार से मैं फर्स्ट आ रहा था, विच इज़ ओके, अप एंड डाउन होते हैं। एल्टन, रिद्धिमा, बहुत खूबसूरत काम किया आप दोनों ने आज। रिद्धिमा, आपका जो म्यूज़िक जॉनर था ग्रंज, बहुत डिफ़िकल्ट जॉनर है। इतने सारे लेयर्स क्रिएट करना, उस पर एक सिर के ऊपर अच्छे हेडर से नहीं कर पाते जिस तरह से आपने उनका फ्रेंच किया। एल्टन, आपने जो क्राउन पे किया था खोल करके, जो उसमें कलर आपने डाला, तो वो बहुत आज का लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से किया। आप दोनों में से इस ड्रेस में प्रेजेंस अ कटाबाओ मिनी टास्क विनर है रिद्धिमा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने ये टास्क जीता, क्योंकि अगर आप जीतते हो तो आपको और कॉन्फिडेंस आता है एंड यू जस्ट वांट टू परफॉर्म बेटर। आपको मिलता है पेपे जीन्स की तरफ से अ गिफ्ट हैम्पर। एल्टन, आप हर टास्क में फर्स्ट रनर अप रहते हो, वो बस फर्स्ट आना बाकी है आपका। रिद्धिमा का लुक बहुत ही अच्छा था, बहुत ही क्रिएटिव था, उसने बहुत मन लगा के किया है एंड आई थिंक इट्स ओके टू हैव लॉस्ट टू हर। Guys, keep up the good work, keep inspiring yourselves and keep pushing yourselves forward. This is a competition. Day end, someone is going home. Okay, that's how serious it is. Okay, game on. आज का एलिमिनेशन टास्क का थीम है रेप्लिक टू अनदर एक्सपर्ट सेशन बाय रॉड द गॉड। When we talk about high-end styling or dressing hair, we tend to think about a tail comb, a brush, big rollers, whatever. We have to understand that hair is a natural form. It falls in a certain way, it does a certain thing for a certain reason. It is art what we're doing, mixed with science. So sometimes it's just about directing the hair the way you want it, not for any reason. We'll do it just because that's the way it's going to sit. So often I'm not going to give you a finished, polished look. I'm just giving you ideas and concepts and a way of thought. Okay? So hand upside down and simply twist it around. Again, I'm not treating it like hair. I'm just treating it like a piece of material. See how that's nice and tight? Then I simply would have gone through and pinned it all up. It's just working with what you've got rather than what you want. So that's obviously not a polished end result look, but that's something that a client can do, and it only took, I mean, if I didn't stop and talk to you, it would have taken maybe 10 minutes to do. Is that all something that you feel comfortable? आज रॉड ने एक्सपर्ट सेशन में हमको काफ़ी टिप्स दिए कि कैसे बालों के साथ you can just play around with the hair. A lot of the time, I would say product accounts for 50-60% of what you're doing. Some serum, and you're not going to use much, and just a paste of some description. So when you're putting product on, I wouldn't sit there and put my hands flat on her head because I've got the product here. I wouldn't do that. It needs to just be very loose to control these loose little hairs, okay? But when you're putting it in, the rest of the hair, it needs to be worked through properly. So you can see now it's got more definition and it's done nothing. I really just put the product in. So respect the way the hair moves and don't try and fight it all the time. Whether it be a hairline, you're cutting the hairline and it's not sitting flat, you have to change your approach because the hair, the way the hair grows is the way the hair grows. You can't use it as an excuse because she's told you she wants it nice and flat. You have to work out a way to get it nice and flat. It's hair. We all love it. Yeah, respect it and understand that it moves for a reason. Okay? It was very inspiring, very motivating और शायद ये टिप्स हम यूज़ कर सकते हैं। So guys, बचपन से हमारे फेवरेट एक्टर्स थे जिनके हेयर स्टाइल्स हमें कॉपी करनी थी, तो हमने सोचा क्यों ना यही चैलेंज बनाया जाए। आज का एलिमिनेशन टास्क का थीम है रेप्लिकट। रॉड, मैंने और नताशा ने बहुत सोच समझ के और बहुत प्यार से कुछ स्केचेस बनाए हैं।
वही स्केचेस को लेके आपको वो स्टाइल अपने मॉडल पे रेप्लिकेट करनी है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क टू डू, क्योंकि जो पिक्चर में देखते हो नॉट नेसेसरीली कि एग्जैक्टली आप हेयर में क्रिएट कर सकते हो। आपको मिलेगा एक मॉडल और 1 घंटा 20 मिनट। स्केचेस को बराबर से समझिए, उसको फॉलो कीजिए और अपना टास्क सक्सेसफुली कीजिए। ये एलिमिनेशन टास्क है। एक आर्टिस्ट अपने एक पेंटिंग को दोबारा नहीं बना सकता। हमें भी वो लुक एकदम कॉपी करना था अपनी मॉडल्स के ऊपर, जो आई गेस मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा था। So without any further ado, let's get the models in. Ridhima, as you are the winner of this morning's mini task, you will select the replica and as well as your model. सिर्फ 2 स्केचेस वहाँ पर थे जिसमें से मेरे को एक चूज़ करना था। एक टाइम को तो लगा कि कुछ विचित्र ही करके उन्हें दिखाऊं, लेकिन मेरे भी दिमाग में आया कि इट्स बेटर टू प्ले सेफ। मुझे सबसे डिफ़िकल्ट स्केच मिला, क्योंकि सब दूसरे स्टाइलिस्ट ने जो भी आसान थे वो लोग ने वो चूज़ किया, तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज था, क्योंकि आई प्रीटी मच गॉट द लेफ्ट ओवर्स। Stylists, as it's our styles that you're here to replicate, the expectations are a mile high. You have 1 hour and 20 minutes and your time starts now. मैंने पिक्चर को देखा, आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सेक्शंस कैसे निकाले होंगे वो लुक क्रिएट करने के लिए। मैंने पहले शुरुआत अपने मॉडल के बालों को शैम्पू करने से की, तो मैंने ट्रेसेमे का सिल्क एंड शाइन शैम्पू उसके बालों में यूज़ किया, क्योंकि उसके बाल थोड़े ज़्यादा एंड्स थोड़े ज़्यादा ड्राई थे, तो मैं चाहता था कि थोड़ा सा काम करने में मुझे स्मूथ लगे बालों को। तो उसके बाद में मैंने ट्रेसेमे का ही सिल्क एंड शाइन कंडीशनर उसके बालों में यूज़ किया। मैंने जो स्केच चूज़ किया था दैट वाज अ वेरी अवांट-गार्ड लुक, तो बहुत टेक्सचर क्रिएट करना था नीचे की तरफ, बट एट द सेम टाइम कीपिंग इट स्मूथ एंड नाइस ऑन टॉप। Hello, Elton. Hi. That's one of the images I gave in. Yeah. You have clarity here? मैं ट्राई करूँगा कि एकदम वैसे लगे, शायद नहीं लगेगा, क्योंकि मे बी थोड़ा सा एल्टन उसमें रहेगा। Keep looking at the image, it will help you. एक पिक्चर 3D नहीं है। What's going on at the back of the head we cannot see. तो शेप कैसा है ये हमें इंटरप्रेट करना है। So I think it's a very tough challenge. वीरेंद्र, आप इमेज को देखते हुए डू यू नो व्हाट एरा इट्स फ्रॉम? काफ़ी पुराना एक वो है जो हाँ जी, लुक है, correct. जो कि थोड़ा सा मुझे नीट करना है और थोड़ा सा वॉल्यूम चाहिए। पहले मैं क्रिम्पिंग करके और उसको बैक कॉमिंग करके उसमें स्टफिंग फिट करके और थोड़ा सा साइड में से नीट लुक मैं देने की कोशिश करूँगा, फ्रंट एंड द साइड। नो डाउट थोड़ा सा मुश्किल होने वाला था, क्योंकि ये लुक इन जनरल हम लोग कभी नहीं कर पाते हैं। कर पा रहे हो मेरे स्केच के हिसाब से कि नहीं? ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि इनके बाल के रीग्रोथ है, स्ट्रेटनिंग किया हुआ है, सो दैट्स द रीज़न आई एम क्रिम्पिंग इट, थोड़ा टेक्सचर क्रिएट करने के लिए एंड सम वॉल्यूम, बट आई स्टिल वांट मोर वॉल्यूम, क्योंकि जो अपडू आपने क्रिएट किया है उसमें बहुत बाल चाहिए। मिनी टास्क में अगर आप फर्स्ट आते तो क्या आप ये स्केच लेते? नहीं। ये स्केच किसी ने नहीं लिया, सबसे टफ स्केच है। Yes. देखते हैं क्या होता है। मेरा जो लुक था बहुत ही अलग था, इंट्रिकेट था, सो आई वाज वरीड कि आई होप मैं ये फिनिश कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत काम करना था उसके ऊपर। आप मिनी टास्क में फर्स्ट आए थे, तो आपने ये स्केच क्यों चूज़ किया? मैंने स्केच जब देखा मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा स्केच। ये इतना इजी नहीं है जो आप प्रोसीजर कर रहे हो, ये मेरी फेवरेट टेक्निक है। ये करते करते बहुत टाइम निकल जाता है और पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत बाल बचे हैं यहाँ पर। इसलिए फटाफट काम करना है हमें। ये एलिमिनेशन टास्क है। आप आज ट्रेसे में प्रेजेंस कट अबाउ सलॉन छोड़ के जा सकते हो अगर आप रॉन्ग हो तो। राइट, ठीक है, सो प्लीज़ टेक दिस सीरियसली। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Everyday clients come to the salon and they say, this is what I want. This is that challenge. My image is what we want to see. Even I believe in that, the look which is there, it is like more neat and it's more classy. That's kind of work which I like. The clock is ticking. Okay? All right. Yeah. Good luck. Thank you.
एकदम कॉपी करना होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। मेरे हिसाब से इतना क्लासिक और नीट वर्क को अचीव करने के लिए जितना टाइम मिले उतना कम है। सब लुक्स में से निदा का लुक सबसे डिफ़िकल्ट है। आई थिंक सेकंड टफेस्ट लुक मेरा है। मुझे कुछ चैलेंजिंग चाहिए था तो मैंने ये चूज़ किया। मेरा ही नहीं सबका ही डिफ़िकल्ट वर्क है। लेट्स सी क्या होता है। आई एम गिविंग माय बेस्ट। मिनट बाकी थे और मेरा लुक आई थिंक आधा से ज़्यादा इनकम्प्लीट था। सर पे वो थोड़ा हैट इश काइंड ऑफ एन इफेक्ट है और फाइनल लुक स्टार की तरह दिखता है। सो आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट। तो अभी जो बेसिक शेप है वो अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ एंड देन आई विल डू द फिनिशिंग। Stress अभी नहीं है, I'm just making curls, so maybe after I have to open the curls and create that shape, I don't know what's gonna happen. I still have to do the bottom, finishing देनी है, आगे का fringe section करना है। I'm trying my best. जैसा कि मेरा स्केच है इसमें काफ़ी सारे रोल्स हैं पर वो बहुत नीट रोल है तो काफ़ी ये मेहनत वाला काम है। स्वेटिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा क्योंकि टेंशन ज़्यादा हो रहा है। पाँच मिनट बाकी है, मुझे नहीं लग रहा है ख़त्म होने वाला है। ये स्केच बहुत डिफ़िकल्ट है। पता नहीं आलिम ने क्या सोचा ये बनाते समय। कुछ ही मिनट बाकी थे और मुझे फिनिशिंग टचेस अभी तक देने थे। So I was just running helter skelter trying to get that look together. Last 1 minute, guys. Guys, last 10 seconds of this challenge. काउंटडाउन शुरू हो गया था और मुझे शाइन स्प्रे नहीं मिल रहा था। 9, 8, 7, 6, 5, लास्ट 5 सेकंड्स में गौरव ने मुझे शाइन स्प्रे दे दिया। 4, 3. 2, 1. Move away from the benches, guys. Hands down. सब अपने मॉडल से केप उतार देंगे। We have to evaluate. So the first person up is Gaurav. Okay, can you call your model, please? This is my particular style, and whilst I think it's quite good, your finishing through here lacks a lot of finesse. Saying that though, it's actually fairly close from the sketch to what you did, but the finish isn't there. मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो क्योंकि आप पिछले 2 टास्क जीते हो, एक मिनी टास्क भी जीते हो। अब आपको ऐसा लग रहा है कि आप हमें इम्प्रेस करते जाओगे लेकिन कहीं ना कहीं वो चुप हो रही है। तो हर एक टास्क को आप सीरियसली लीजिए क्योंकि जो बेस्ट है वो भी एलिमिनेशन टास्क से आउट हो सकता है। जो मैंने लुक क्रिएट किया था वो काफ़ी क्लोज था लेकिन टाइम लिमिटेशन होने के कारण और जो मुझे प्रॉब्लम आ रहे थे वो रोल्स बनाने में, उसके कारण वो नीटनेस मैं नहीं दे पाया। वीरेंद्र, आपने ये इमेज उठाया, इफेक्ट आया है, यू डिलीवर्ड, बट ये रोल आगे होना था, आपका पीछे चला गया। यू नो, यू नॉट फेमिलियर विद द लुक्स ऑफ दिस एरा। काफ़ी क्लोज हो। ऑब्वियसली आपको बैक नज़र नहीं आया स्केच के अंदर, इसलिए आपकी जो बैक है बार वो इतना खूबसूरत नहीं है। फिनिशिंग में आप मार्क है लेफ्ट प्रोफाइल में, लेकिन स्केच के हिसाब से आपने सब कुछ बराबर किया है। थैंक यू सो मच। रिधिमा, इसको आपको रेप्लिकेट करना था। आपको लगता है आपने बराबर से किया? आपको लगता है आपने बराबर से किया? To a certain extent, a little, I tried. कुछ हद तक आपने ठीक किया, आगे से मुझे पसंद नहीं आ रहा है।
आगे से आप उसमें थोड़ा सा और स्प्रे डाल के होल्ड फैक्टर लेके आ सकते थे। स्केच वाइज आप काफ़ी क्लोज हो। You stumbled a little bit, you got back on your feet, that's the main thing, but that front is a little bit Yes, I agree. adrift. I don't know whether it's just fallen off. Well, yes, it was sitting and covering one of her eyes like that, but then eventually, I'm sure she was getting bothered, so she kept pushing it back, but that's not an excuse. So it's your model's fault. Nah, she's been sweet and Okay. yeah. Elton. Aesthetically, it is close. The details are not. आपने blend किया है यहाँ का और यहाँ का. There is a difference. They were two different sections. Can you turn your head around? I tried to create that separation, पर हो नहीं रहा था. So I went with what I could do as opposed to giving up. मैं फ्रिंज से इतना खुश नहीं हूँ कि फ्रिंज अगर आप देखेंगे काफ़ी हॉरिजॉन्टल सेक्शन है और आपने डायगोनल लिया है यहाँ से, वो स्केच के हिसाब से प्रॉपर नहीं है, थोड़ा सा मार्क है ऑफ शेप में। निदा ये स्केच मैंने बनाया, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था, ये किसी ने चूज़ नहीं किया, लेकिन आप अचीव कर पा रहे थे यहाँ तक। यहाँ पर भी आप कर रहा था, पीछे जाके आपने कहीं ना कहीं बराबर से नहीं कर पाए। आपको याद रखना चाहिए था कि ये एलिमिनेशन टास्क है। Where did you go wrong? Time. This whole journey is hard for you guys and it's hard for us too. For the simple reason we see potential, but at the end of the day it's a competition. As we've said, you're only as good as your last challenge. Let's get straight down to business. Virendra or Gaurav on the floor, please. आई वॉज क्वाइट हैप्पी। मुझे फर्स्ट या सेकंड पोजीशन के ऊपर मैं आने वाला हूँ। काफ़ी एक्साइटेड था सुनने के लिए। मुझे लग रहा था कि मैं जीत सकता हूँ क्योंकि जो मैंने लुक क्रिएट किया था वो काफ़ी क्लोज था। Surrender. It was close to what we presented. There were small areas of difference. Structurally, there was a little bit of errors. But overall, it was there. The finish, you lacked it. Gaurav, yours was again close, but the finish was not there. कुछ नेगेटिव पॉइंट गौरव के भी उन्होंने गिनाए, कुछ मेरे भी गिनाए। तो उस टाइम में मैं कंफ्यूज था, थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है। So in this particular challenge, Virendra, you're the winner. Thank you so much. I was really very much happy. Virendra, you've been the silent achiever. How does it feel? मैं अभी तक इस पूरे शो के अंदर में फर्स्ट पोजीशन पे अभी तक नहीं आया था, तो आई एम वेरी ग्लैड। As the winner of this elimination task, you get to present the Tresemme style tip of the day. Congratulations. Please. And we'll bring the next three down, please. Elton, Ridhima, or Riddha. So, guys, it's got to be obvious. आप तीन हमारे bottom three हो. छोटी छोटी गलतियाँ आप तीनों ने की। We three have become really close friends. तो अजीब लग रहा था कि हम में से एक कोई घर जा रहा था। Elton, you didn't see it through clearly. But what I will say to you today, आप safe हो। आज एलिमिनेशन टास्क के बॉटम 3 में आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ है कि मुझे इतना एनर्जी स्पेंड नहीं करना चाहिए ऑन प्लानिंग माई लुक। आई शुड जस्ट लेट द हेयर गाइड मी थ्रू द लुक। निदा, रिद्धिमा, आप दोनों में से कोई एक ट्रेसेमे प्रेजेंस कट बाव का सलॉन छोड़ के जाना पड़ेगा। दोनों के काम ने हम तीनों को इम्प्रेस नहीं किया, मगर कुछ पॉइंट से
जो सेफ हुआ है वो है रिधिमा, आप सेफ हो। सॉरी निधा, यू आर वेरी टैलेंटेड, मगर आज आपको ट्रेसेमे प्रेजेंस कट अबाउट सैलून छोड़ के जाना पड़ेगा। आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड। मुझे पता था कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था एंड आई न्यू दैट मैं घर जाने वाली हूँ। आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी कि आई एम हियर इन टॉप 5। सो या आई एम जस्ट हैप्पी टू बी हियर। आपके जो ये दोस्त हैं, कुछ लोग इमोशनल हो गए हैं आपको देख के जाते हुए, बहुत प्यार करते हैं मुझे लगता है आपसे। यहाँ तक मेरा जर्नी जो है बहुत ही अच्छा गया। हम लोग काफ़ी गहरे फ्रेंड्स हो गए हैं। I'm going to practice a lot of updos. I'm going to work on my speed, on my finishing, and maybe you might see me next season. You guys have performed brilliantly today, but understand, don't get stressed, because stress and tress are two words that don't go together. You need to keep performing to stay in the race. आप इस कंपटीशन के लास्ट लेग पहुंच चुके हो। नीडलेस टू से, अब गलती करना बड़ी ही गलती होगी। जहाँ पर कोई गलती करेगा वो एक ना एक टाइम पे उसको बाहर जाना ही पड़ेगा। हो सकता है कल मेरा ही नंबर हो। रिमेंबर दैट, यू बेटर कट गुड और गेट कट फॉर गुड। A simple Athena braid gives you that European touch. First take a box at the crown and divide it into 2 parts. Hold the back part at right angle and tease it, smoothen it and leave it behind. Take the front section, tease it, smoothen it over and pin it. Starting with the right side, take all the hair and start braiding it till the end. Fastening it with a rubber band, take it at the back and pin it. Do the same thing with the left side and pin it. With that, you have a trendy style to flaunt. Today, we'll find out who will be India's top 3